محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل میری امت میں سے 10 طرح کے افراد پر قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا اور ان کو جہنم میں ڈال دینے کا حکم فرمائے گا، اور ان کے جو چہرے ہوں گے بغیر گوشت کے ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے 10 لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 بوڑھا زانی، 2 گمراہ پیشوا، شراب کا عادی، والدین کا نافرمان، چغلی کرنے والا، چغل خور، جھوٹا گواہ، جھوٹی گواہی دینے والا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، سود خور، ظالم اور نمازوں کو چھوڑ دینے والا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ ذات پات، مذہبی تفریق و سیاسی سماجی معاشی مساوات کا قیام ہی بھارت کے آئین کا مقصد۔ کانسٹیٹیوشن ڈے کا ضلع میں جوش و خروش کے ساتھ اہتمام۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کو مختلف سیاسی سماجی مذہبی قائدین نے پیش کی خراج۔ صحت مند معاشرہ ہی ترقی کا ضامن اور صحت مند سماج کی تعمیر میں ANM و آشا ورکرز کا اہم رول۔ بانسواڑہ میں حفظان صحت کے عنوان پر منعقدہ تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سنہا ریڈی کا خطاب۔ ووٹر ID کارڈ کے لیے 2 روزہ اسپیشل ڈرائیو کا آج شہر میں انعقاد۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر عوام کا ہجوم۔ صدر مجلس شکیل فاضل نے پولنگ مراکز کا کیا دورہ۔ ریاستی وزیراعلیٰ KCR کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ایرکٹلہ منڈل کے BJP قائدین نے ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کے ہاتھوں TRS میں حاصل کی شمولیت۔ ریاست میں نارمل ڈیلیوری کے تناسب میں اضافہ و بچہ و ماں کی حفاظت کے لیے TRS کے مختلف خدمات۔ ایک ہی وقت میں ریاست کے 44 ہاسپٹل میں اسکیننگ مشین کا ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے کیا افتتاح۔ ایرپلی منڈل میں آنگن واڑی کارکن کی لاپرواہی کے سبب ایک طالبہ پر گرا گرم پانی کا برتن، طالبہ ہوئی شدید زخمی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بودھن روڈ کو بابن صاحب پہاڑی سڑک سے جوڑنے والا حصہ مسلسل پانی کے بہاؤ کے سبب بڑے نالے میں تبدیل۔ محکمہ بلدیہ کی جانب سے کی جا رہی عارضی کارروائی کے سبب مسلسل رونما ہو رہے حادثات۔ عوام نے اعلیٰ عہدیداروں سے مسئلے کے حل کے لیے کی اپیل۔ شاہ نظام آباد کی ایک مصروف ترین سڑک بودھن روڈ ہے جو شہر و ضلع کو مہاراشٹر و ممبئی جیسے بڑے شہروں سے جوڑتی ہے، لیکن اس سڑک کی ایک ذیلی سڑک جو بابن صاحب پہاڑی کو جوڑتی ہے وہاں پر مسلسل پانی کے بہاؤ کے سبب ایک بڑا گڑھا بن چکا ہے، جس کے سبب ہر روز کئی حادثات رونما ہو رہے ہیں اور کافی ٹریفک کا مسئلہ بھی پیدا ہو رہا ہے، جس پر محکمہ بلدیہ کی جانب سے اس پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں کرنے اور اس بہتے پانی میں مورم ڈالنے کے سبب یہ سڑک اور بھی خراب ہو رہی ہیں، جس کو حل کرنے کے لیے مقامی عوام نے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی۔ واضح ہے کہ حکومت کی جانب سے اس مسئلے کے حل یعنی پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے ایک نالے کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور کیے ہیں اور کچھ حد تک کام بھی انجام دیے گئے ہیں، لیکن نامعلوم وجوہات کے سبب ماباقی کام ابھی تک تعطل کا شکار ہے، جس کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے عوام نے اعلیٰ حکمرانوں سے اپیل کی۔ عوام اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرنے کے لیے قبل از وقت ووٹر کارڈ فہرست میں اپنا نام درج کروا لے۔ اسپیشل ڈرائیو فار ووٹر ID کارڈ سے عوام استفادہ حاصل کرے۔ ڈویژن نمبر 51 مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد علی باغبان۔
آج ڈویژن نمبر 51 میں ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے منعقدہ اسپیشل ڈرائیو کا مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر محمد علی باغبان نے دورہ کرتے ہوئے جاری کاموں کا جائزہ حاصل کیا اور عوام میں ووٹر کارڈ کی اہمیت و افادیت کے مطابق شعور بیداری پیدا کی اور اس کی اہمیت و افادیت سے واقف کروایا۔ بات ازاں انہوں نے گولڈن جوبلی اسکول و روٹری کلب میں قیام کردہ پولنگ مراکز پر پہنچ کر انہوں نے عوام کو رہنمائی اور فارم کو پر کرنے میں عوام کی مدد کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ نوجوان سماجی خدمت گزار محمد سہیل باغبان، توصیف محمد فرید و دیگر موجود تھے۔ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے لیے منعقدہ اسپیشل ڈرائیو کے کاموں کا صدر مجلس و بلدیہ فلور لیڈر شکیل فاضل نے مختلف پولنگ مراکز کا دورہ کرتے ہوئے لیا جائزہ و عوام سے استفادے کی اپیل۔ آج ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کے احکامات پر منعقدہ 2 روزہ ووٹر آئی ڈی کارڈ اسپیشل ڈرائیو کا آج شہر کے ڈویژن کے پولنگ اسٹیشن پر انعقاد عمل میں لایا گیا، جس کے تحت نیشنل ہائی اسکول پر منعقدہ کیمپ کا صدر مجلس و بلدیہ فلور لیڈر شکیل فاضل نے پہنچ کر جائزہ حاصل کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ مقامی مجلس اتحاد المسلمین انچارج کارپوریٹر سرفراز خان، اعجاز حسین، ماؤنٹ کارپوریٹر شہباز و اسکول سرپرست ڈاکٹر رضی شتاری و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ووٹر کارڈز کی جانچ کروا لے، ووٹر فہرست میں اپنے نام نہ ہونے پر اندراج کرنے کے ساتھ ساتھ ووٹر آئی ڈی کو آدھار کارڈ سے مربوط بھی کروا لے، جس کے لیے ہمارے کارپوریٹرز بھی عوام کی مدد کے لیے پولنگ مراکز پر موجود رہیں گے۔ اس موقع پر عوام کی کثیر تعداد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا اور اتوار کے روز بھی یہ کیمپ جاری رہنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ آج نظام آباد اربن میں ERO کی جانب سے اسپیشل ڈرائیو لگایا گیا الیکشن کے تعلق سے، جس میں فارم 6 اور فارم 8 فارم 7 کا جو خانہ پوری ہے وہ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز جہاں بھی ہے وہاں پر BLOز آ کے بیٹھے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سپروائزرز بھی آ کے بیٹھے ہیں۔ عوام الناس سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ووٹر لسٹ کو سدھاریں اور جو اپنے گھر میں جو نئے نویلے بچے ہیں جو 17 سال عبور کر چکے ہیں، 18 سال تک آئے ہیں، ان کے لیے فارم 6 کا بھی سہولت رکھی گئی ہے۔ ہم عوام سے خصوصاً ایسے وقت میں ہمیں ضروری ہے کہ اپنا ووٹ کا اپنے پاس رہیں، تو اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں اس کا صحیح ہم جو چاہ رہے ہیں، ہم عوام جو چاہتی ہے، آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں اگر کسی کے تعلق سے غصہ ہے یا کسی کے ساتھ محبت ہے، تو جمہوری ملکوں میں جمہوری طریقے سے آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ووٹ کے ذریعے۔ تو میری پھر سے ایک بار یہ درخواست ہے کہ یہ چیزوں پہ آپ اپنا دلچسپی دکھاتے ہوئے کام کریں اور ہمارے اپنے مائنرٹی ایریوں میں خصوصاً آپ کے ایریے کے کارپوریٹرز سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے اس میں ہمارے ذمہ دار کارپوریٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ استاد کا پیشہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، استاد و معلمات اس کا حق ادا کرے۔ تلنگانہ ریزیڈینشل اسکول و کالج کے اساتذہ سے خطاب۔ عبدالقیوم شاکر القاسمی، جنرل سیکرٹری جمعیت علماء و ضلع نظام آباد۔ آج بتاریخ 26 نومبر 2022 بروز ہفتہ بعد نماز ظہر نگرام گورنمنٹ کالج نظام آباد میں منعقدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام برائے عربی و اردو معلمین و معلمات میں شرکت ہوئی۔ پرنسپل عبدالبصیر نے تمام تر تفصیلات اور مقصد اجلاس سے واقف کروایا۔ نیز طلباء و طالبات کی تعلیمی و تربیتی ذمہ داریوں کو اساتذہ کو کس طرح ادا کرے، اس حوالے سے چند باتیں ذکر کرنے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بنام خدا قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کہ وہ افادہ عام کے غرض سے شائع کیے جا رہے ہیں۔ اس نیت سے اللہ پاک سننے والوں کی برکت و خلوص سے کہنے والوں کو بھی توفیق عمل دے۔ اساتذہ کرام کو یہ بات مختصر ہونی چاہیے کہ استاذی اور معلم کا پیشہ پیغمبرانہ پیشہ اور ذمہ داری ہے۔ باری تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلم اور استاد بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہ ساری انسانیت کا درد اپنے دل میں لے کر انسانیت کی بھلائی و نجات کی فکر فرماتے تھے۔ راتوں کو جاگنا، دن میں تبلیغ دین و حقائق حق کی عظیم ذمہ داری کو ادا کرنا، خلوت و جلوت میں امت کے لیے رونا اور بلکنا، محض اپنی امت کی راہ ہدایت کو پانے اور جمع رہنے کے لیے شب و روز تک وضو کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہے کہ ایک معلم کو کس طرح اپنے ماتحت رہنے اور تربیت و علم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے جستجو اور فکر کرنا چاہیے۔ رسول عربی نے فرمایا، معلمہ مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں بھی اس پیشے کی عزت و عظمت کو سمجھنے
समझने की जरूरत है। उस्ताद ख्वाह उर्दू जुबान का हो या अरबी और कुरान पढ़ाने वाला, हर एक को इस मनसब की कदरदानी करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बहसनो खूबी अंजाम देना चाहिए। नेज़ ये मनसब हमारे लिए बारी ताला की जानिब से एक नेमत तस्वुर करते हुए इस पर शुक्र बजा लाने का भी एहतमाम करना चाहिए, ताकि मज़ीद अल्लाह की तरफ से सलाहियत में ज़्यादती और निखार पैदा हो। असातिज़ा को चाहिए कि अपने पास इल्म हासिल करने और तरबियत लेने वाले तुलबा व तालिबात की भी कदरदानी करे और इनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की फिक्र करे। अच्छे से अच्छी तरबियत और तरकीबें सोचने के हम इन तुलबा को अपने मकसद में कैसे कामयाब कर सकते हैं, इनके दिलों में इल्म की अजमत और कदर कैसे जमा सकते हैं। नेज़ तुलबा को बार बार अपने औकात की हिफाजत और कदरदानी की ताकीद व नसीहत करते रहे, ताकि आज के ये नौजवान कल मुल्क व मिलत के मेहमान और इंसानियत के लिए आज अपने हाथों में मुस्तकबिल लिए बैठे हैं। इनकी औकात का सही इस्तेमाल हो, दर्स व तदरीस और तालीम में एकसवी पैदा हो और इस बात से वाकिफ करवाए कि वक्त ज़िंदगी का दूसरा नाम है। जिसने वक्त की कदर की, दुनिया ने इसकी कदरदानी की। जिसने औकात का तहफ़्फ़ुज़ व सही इस्तेमाल नहीं किया, दुनिया भी ऐसे लोगों को अक्सर फरामोश करेगी। साथ साथ उस्ताद को चाहिए कि वो अपने तुलबा व तालिबात को उलूम व फ़नून में महारत, तामा और फ़नून में कमाल पैदा करने की तरग़ीब देते रहे और अच्छे काम और उम्दा तालीमी व अखलाक़ी मुज़ाहरा करने वालों की हिम्मत अफ़ज़ाई व हौसला नुमाई भी करे, ताकि इनमें मज़ीद आगे बढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ पैदा हो। तालीम के साथ साथ असातिज़ा को चाहिए कि वो तुलबा की अखलाक़ियात की भी तामीर करे, चूँकि इल्म आ जाए और अखलाक ना आए तो ये इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। असल चीज़ है अखलाक़ियात का दर्स होना। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो उम्दा अखलाक वाला है। रिवायत में आता है कि इंसान के नामा अमाल में सबसे ज़्यादा वज़नी इसके अपने अखलाक होंगे। इस तरह असातिज़ा चूँकि बाप का दर्जा रखते हैं, तो हर उस्ताद को बच्चों की अखलाक़ियात की जिस कदर फ़िक्र होती है, इससे कहीं ज़्यादा उस्ताद को फ़िक्र करना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी बाप ने अपनी औलाद को हुस्न अखलाक और आदाब हुस्न से बहरूकी तोहफ़ा नहीं दिया, यानी इससे बेहतर और कोई चीज़ हम अपनी औलाद को नहीं दे सकते हैं। उस्ताद खुद भी बाअखलाक व बाकिरदार बने और बच्चों के भी अखलाक़ियात पर तवज्जो दे। असातिज़ा व मौलिमात को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। दीनी एतबार से ये तुलबा हमारे पास एक अमानत है, इनकी हक तलफी हमारे लिए मौक़िज़ा का सबब बन सकता है। नेज़ इस अमानत के बारे में बारी ताला हमसे बात पर भी फरमाएंगे, हम अपने औकात और तुलबा के औकात की भी कदर करें। आखिर में ये बात कहता हूँ कि हम अपने आप को मिसाल उस्ताद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मियार बनाएं और खिदमत दीन व इल्म में पूरी संजीदगी और अमानतदारी के साथ लगे रहे। इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर नताइज हम अपनी आँखों से देख पाएंगे, वरना फिर वही कफ अफसोस मिलना पड़े। सारी मेहनतें रायगा जाएंगी। अल्लाह पाक हम सबको इखलास व इस्तिकामत के साथ इस अजीम जिम्मेदारी को निभाने की तौफीक दे और हक तलफी से हमारी हिफाजत फरमाए। एतबार से अमानत समझना चाहिए, ये हमारे पास अमानत है और अल्लाह तबारक व तआला ये अमानत हमारे सुपुर्द किए हैं, तो हमें इस अमानत का कल अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने जर्रा बराबर भी खयानत की पढ़ाने के एतबार से या औकात के एतबार से या वक्त के अंदर कमी ज्यादती हमने कर दी या बच्चों को जिस तरह पढ़ाना मकसूद था मुंतजिमीन का हमने ऐसा नहीं पढ़ाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के नजदीक बाज पुरस होगी, पूछा जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, हमारा मुआखजा होगा ही होगा। हम छुटकारा नहीं पा सकते। ये तो एक दीनी एतबार से मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं, असातिज़ा हैं हम सब लोग। तो हमें इस नेमत की भी कदर करना चाहिए और बच्चों की भी कदर करना चाहिए और अपने औकात को मुकम्मल तौर पर इन बच्चों की तालीम, उनकी निगरानी, उनकी सलाहियत पे खर्च करना लाजिम और ज़रूरी है। अगर हमने 1 मिनट और 1 सेकंड भी ज़ाये किया तो अल्लाह के नज़दीक हम पूछे जाएंगे। अवाम अपने वोट के हक़ की हिफाजत को समझे और वोटर फहरिस्त में अपने नाम का इंदराज करवा ले। डिवीज़न नंबर 31 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने डिवीज़न में जारी वोटर ID कार्ड ड्राइव के कामों का लिया जायजा।
आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोऑपरेटर डिवीज़न नंबर 31 मोहम्मद मुनव्वर अली ने डिवीज़न के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर मुनाक़िदा वोटर ID कार्ड ड्राइव का जायज़ा हासिल किया और अवाम को अपने वोट के हक़ के इस्तेमाल के लिए वोटर फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए मुतवज्जे करवाते हुए वोट की अहमियत व इफादियत से वाकिफ़ करवाया और ख़ुद पोलिंग मराकज़ पर अपने हामियों के हमरा अवाम की मदद करते रहे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि वोट हमारा जमहूरी हक़ है और इसी हक़ के तहत हम हिंदुस्तान की हुकूमत को बना सकते हैं और अपने मसाइल के हल के लिए एक नुमाइंदे को चुन सकते हैं। लिहाजा अवाम इस कैंप से कसीर तादाद में इस्तिफादा हासिल करें और बरोज़ इतवार यानी कल भी ये कैंप जारी रहेगा, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। इस मौके पर इनके हमरा शेख ज़फ़र व BLOs हसीना बेगम, इरफाना बेगम, शबाना बेगम, बशीरा बेगम, जरीना बेगम व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ख़ास तौर पे आटू नगर के 31 नंबर डिवीज़न में आज सतीश नगर में नए वोटर ID कार्ड बन रहे हैं और जिसका लिंक्स नहीं हुआ है उन्होंने आके 2 दिन का गवर्नमेंट की तरफ से यह क़याम रखा गया है। जिसको भी शिफ्टिंग करने का है और जिसके इलेक्शन कार्ड नहीं है उन्होंने आके आज और कल करा सकते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। मेहरबानी करके आधार कार्ड लिंक भी करा सकते हैं और जिसका इलेक्शन कार्ड नहीं है उन्हें इलेक्शन कार्ड को भी बना सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मेहमान दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर से तमाम तबक़ात के लोगों को मुसावियाना हुकूक देने का चेयरमैन स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेसर R लिम्बादरी ने किया इजहार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के सेमिनार हॉल व कंप्यूटर साइंस बिल्डिंग में सरकारी तौर पर मुनक़िदा यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले चेयरमैन स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोफेसर R लिम्बादरी ने खिताब करते हुए कहा कि मियार दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से तहरीर करदा दस्तूर से तमाम तबक़ात के लोगों को मसावियाना हुकूक दिए गए हैं, यही मुल्क की शान और पहचान होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रोफेसर विद्यावर्धिनी, रजिस्ट्रार डॉक्टर रविंद्र EC मेंबर प्रोफेसर आरती, प्रिंसिपल प्रोफेसर कनकయ్య व दीगर ने शिरकत की। మీరు ఎడ్యుకేషన్ ఎన్రోల్మెంట్ కూడా మీరు చూస్తే 1950 కంటే ముందు 1950 తర్వాత చదువుకున్న వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి 1950 కంటే ముందు ఎంతమంది అమ్మాయిలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నారు, ఇవాళ ఎంతమంది అమ్మాయిలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నారు, 1950 కంటే ముందు ఎంతమంది SC ST BC మైనారిటీలు విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఉన్నారు, ఇవాళ ఎంతమంది ఉన్నారు. ఇట్లా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అది బికాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను. चांद नजर आ गया मरकजी रुयत हलाल कमेटी का ऐलान। मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बाज़िम्न रुयत हलाल माह जमादिउल अव्वल 1444 ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद क़ुबुल बादशाह क़ादरी अल-शत्तारी मोहतमी सदर मजलिस उलमा दक्कन आज शाम खानखा कामिल मरकजी आस्ताना शत्तारिया दबीरपुरा में मुनक़िद हुआ। शहर में चांद नजर आ गया। रुयत हलाल कमेटी गुलबर्गा शरीफ से इत्तला मिली कि वहाँ चांद नजर नहीं आया, अलबत्ता फरहंगी महल, लखनऊ, खानखा, मुजिबिया, पटना, इलाहाबाद, भोपाल, अहमदाबाद, कानपुर, बंगलोर, चेन्नई, कड़पा और औरंगाबाद से आम रुयत की इत्तला मिली। लिहाजा तहत अहकाम शरिया मरकजी रुयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन ऐलान करती है कि 26 नवंबर हफ्ता 1 जमादिउल अव्वल 1444 होगी। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने शहर के डिवीज़न नंबर 45 प्रगति नगर में 10 लाख रुपये मालियती रकम पर मबनी CC रोड तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर ने शहर का दौरा करते हुए डिवीज़न नंबर 45 प्रगति नगर में 10 लाख रुपए की लागत से CC रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर मेयर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत व अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए फेलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है, जिससे ज़िले में मुक़ीम अव्वाम टीआरएस हुकूमत के शायदारी होने का इजहार किया। फंड ఇవ్వడము దానిలో మన అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి కృషి చాలా ఉంది. మొన్ననే అందరూ కూడా చూశారు, మన నిజామాబాద్ నగరానికి ప్రత్యేకంగా 100 కోట్లు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. మరి దానికి అనుగుణంగానే డబ్బులన్నీ మరి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి మనం నగర అభివృద్ధిలో పెట్టడం జరుగుతుంది.
सीएम केसीआर की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर एरगटला मंडल तलारामपुर देहात के साकिन बीजेपी पार्टी मंडल सेक्रेटरी मोहन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के अलावा बालकुंडा हल्का असम्बली में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर एरगटला मंडल तलारामपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी पार्टी मंडल सेक्रेटरी मोहन ने रियासती वज़ीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने टीआरएस पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी पार्टी मंडल सेक्रेटरी मोहन को टीआरएस पार्टी का घंटा पहनाकर शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में मुल्क की किसी भी रियासत में रूबे अमल में न लाए जाने वाली फलाही व तरक्याती स्कीमात सिर्फ रियासत तेलंगाना में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है, जिससे रियासत तेलंगाना में मुक़ीम अवाम टीआरएस हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल पार्टी सदर पूर्णानंदम, कमरपल्ली मार्केट कमेटी डायरेक्टर अंजय रेड्डी, बोनागिरी रमेश व दीगर ने शिरकत की। दस्तूर हमें भाईचारगी, आपसी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म का दर्स देने का जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव ने किया इजहार। जेडपी चेयरमैन विट्ठल राव ने जेडपी दफ्तर में यौम दस्तूर हिंद तकरीब के पेश नज़र दीगर मुलाजमीन के हमरा मियार दस्तूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर पर फूलमालाएं पहनाते हुए खराज ख़दत पेश कर कहा कि दस्तूर हमें भाईचारगी, आपसी इत्तेहाद, सेकुलरिज्म और कसरत में वाहिदियत व सालिमियत का दर्स देने का इजहार किया। మరి దానికి తోడు అంబేద్కర్ ఏదైతే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం మనము తెలంగాణ ఈజీగా సాధించుకోవడం జరిగింది. మరి తెలంగాణ ఈరోజు వచ్చిందంటే అటు కేసీఆర్ పనంగా పెట్టి ఇటు అంబేద్కర్ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారమే మనకు తెలంగాణ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ మనము ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ बांसवाड़ा शहर के चाइल्ड हॉस्पिटल में जदीद तौर पर क़याम अमल में लाए गए टीफा स्कैनिंग मशीन का रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर का दौरा करते हुए शहर के चाइल्ड हॉस्पिटल में जदीद तौर पर कायम किए गए टीफा स्कैनिंग मशीन का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इनके साथ DMHO लक्ष्मण सिंह, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद, बांसवाड़ा मजलिस बल्दिया चेयरमैन जनगम गंगाधार, मुकामी अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। इस प्रोग्राम के मद्देनजर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि स्कैनिंग मशीन से बच्चे की सेहत की हालत की जानकारी हासिल करने में काफी कारआमद होता है। इसी तरह से हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात के अलावा जदीद आलात की तनसीब अमल में लाने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी की तादाद में इजाफा होने का इजहार किया। మేము ఇప్పుడు ప్రారంభించినటువంటి మిషన్ ని మనకు పంపించారు. ఆ మిషన్ ధర 30 లక్షలు. ఆ మిషన్ వల్ల ఏం చేసేది, అమ్మాయి 6 మాసాలకు ముందే సహజంగా 100కి ఒక వ్యక్తి ఉంటారు. ఎట్లా కడుపులోనే ఈ పన్ను చెట్టు ఇది కోసినట్టు ఉంటుంది, లేకుంటే కాలు ఇట్లా వంతరు ఉంటుంది, కడుపులోనే అంగవైకల్యం ఉంటుంది. कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद देहात में यौम दस्तूर हिंद का कामयाब इनेकाद। कमरपल्ली मंडल के बशीराबाद देहात में वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर के अहाते में मुकामी सरपंच अशोक के ज़ेर निगरानी मुनाक़िदा यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कमरपल्ली मंडल सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एम राजेश्वर ने शिरकत करते हुए मेमार दस्तूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए खराज ख़दत पेश की। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच विक्रम, सेक्रेटरी श्रीनिवास, VDC सदर मुकेश, वार्ड मेंबरान गणेश, कायदीन बी महेश, एस नारायणा, एन रमेश, पी राजू, बी राजू, एस श्रीनिवास, VDC मेंबरान मुरली, देविंदर, नारायणा, गोवर्धन, पुलिस मुलाजमीन ने शिरकत की। रेंजर मंडल के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत में 75वां यौम दस्तूर हिंद प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
रेंजल मंडल के अलावा ताड़ बिलोली साटापुर के साथ साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत में यौम दस्तूरहीन तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का दस्तूर बना और मेमार दस्तूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमारे मुल्क के दस्तूर में तमाम तबक़ात के लोगों को मसावियाना हक़ूक़ दिए। यही हमारे मुल्क की शान और पहचान होने का हिंदुस्तान के मेमार दस्तूर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की सराहना की और दस्तूर पर मजबूती के साथ कायम रहने का अहद किया। इस प्रोग्राम में ताड़ बिलोली देहात सरपंच वेलमला सुनीता नरसैया, साटापुर सरपंच विकार पाशा, मुख्तलिफ मौज़ूआत के सरपंच के अलावा रायतु सामान्य समिति जिले डायरेक्टर मौलाना अनंतैया, अम्बेडकर यूथ मेम्बरान प्रवीण समील, विजय पोशेट्टी, वार्ड मेम्बरान के साथ मुकामी अवाम ने शिरकत की। बालकुंडा में 75वां यौम दस्तूरहीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ ग्राम पंचायत दफ्तर में 75वां यौम दस्तूरहीन प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुकामी सरपंच बी सुनीता, नायब सरपंच शेख वहाब, पंचायत सेक्रेटरी एन सैयद, देवेंद्र, अहदेदार रघुविंदर ने खिताब करते हुए कहा कि दस्तूरहीन के मेमार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की काविशों के सबब मुल्क के अवाम को इंसाफ व इकसा हक़ूक़ फराहम करने के लिए तैयार किए गए दस्तूर पर हमें फ़ख्र करने की ज़रूरत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेम्बरान पी विद्यासागर, सैयद रियाज अली, जी राजेंद्र, बादगुना, रंजीत यादव, टी सुरीता, अशोक, रामन शिवा, टीआरएस खादिम, टी गंगाधर, जूनियर असिस्टेंट प्रभाकर, कारोबार राजू, फ्लैट असिस्टेंट सुरेश, विशाल, महेश, नरेश व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुकामी अवाम को वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत के ज़ेर निगरानी में मुकामी अवाम को वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के ताल्लुक से शौर बेदारी प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत में ऑटो के ज़रिए तशरीह करते हुए मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवाने का पंचायत सेक्रेटरी नला गुंटी नरसैया ने इजहार किया। बातज़ा नायब सरपंच शेख वहाब ने खिताब करते हुए कहा कि हर एक शख्स अपने वोटर कार्ड को यकीनी तौर पर आधार कार्ड से लिंक करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी एन नरसैया, नायब सरपंच शेख वहाब, वार्ड मेम्बरान सैयद रियाज अली, पंचायत मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के नागेंद्र नगर देहात में मुकामी सरपंच बालाजी गौड़ ने अचानक यूपीपीएससी स्कूल की तनख्वाह अमल में लाई। एरगटला मंडल के नागेंद्र नगर देहात में मुकामी सरपंच बालाजी गौड़ ने यूपीपीएससी स्कूल का अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए मेन्यू के मुताबिक तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया। वो बातज़ा मुकामी सरपंच ने तलबा के साथ ताम किया। इस प्रोग्राम में सेक्रेटरी संध्या रानी, नायब सरपंच जात्रा कोंडा शेखर, वार्ड मेम्बरान, कारोबार जनार्दन, ग्राम पंचायत राकिन व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में ग्रुप 4 की 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी। महकमे अखलाती बहबूद की 191 मुलाजिमतें भी शामिल। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी दी है। ग्रुप 4 की 9168 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर हरीश राव ने कहा कि मुलाजिमतों को पुर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वजीर ने बताया कि 9168 मुलाजिमतें तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए पुर की जाएंगी। वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के वादे के मुताबिक पुर की जा रही है। इस मौके पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। मुलाजिमतों में महकमे अखलाती बहबूद की 191 मुलाजिमतें भी शामिल है, जिनमें 185 मुलाजिमतें तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी की और 6 मुलाजिमतें डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की शामिल है। ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए साइबर क्राइम मुजरिमीन की जानिब से भोले भाले अवाम को बनावटी बातों के जरिए अपने जाल में फांस कर अकाउंट में मौजूद रकम पर हाथ साफ करने वाले मुजरिमीन से चौकस रहने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने किया इजहार। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने कहा कि साइबर क्राइम से निजात हासिल करने के लिए पुलिस मुलाजमिन व अहदेदारान के पुलिस स्टेशन के हाथे में मुहिम अवाम को पोस्टर पंपलेट के तहत साइबर क्राइम व ऑनलाइन धोखाधड़ी के ताल्लुक से तशरीह अमल में लाते हुए शौर बेदारी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि रुद्र पुलिस स्टेशन के हाथे में वाक़ एक मुस्तहिक़ को साइबर क्राइम मुजरिमीन की जानिब से यूनो ऐप SBI में पैन कार्ड KYC डिटेल्स फौरी तौर पर अपडेट करे, वरना अकाउंट ब्लॉक होने के ताल्लुक से मौसूल होने वाले मैसेज में मौजूद लिंक को क्लिक कर यूजर टीम एंड पासवर्ड इंटर करने के बाद हासिल होने वाले OTP को भी इंटर करने के फौरी बाद इस मुस्तहिक के अकाउंट से 24,999 रुपए
गायब हो गए। इसी तरह से 1 टाउन के मुस्तहिक के खाते से 41,174 रुपए, 3 टाउन और 4 टाउन मुस्तहिकीन के खातों से 1,15,000 रुपए, रूरल पुलिस स्टेशन से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक के खाते से 1 लाख और पुलिस से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक के 6,900 पर हाथ साफ किया गया। मेंडोरा 2 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते से ताल्लुक रखने वाले एक मुस्तहिक ने इनके अपने दोस्त अहबाब के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम क्रिएट किया। तब साइबर क्राइम मुजरिमीन की जानिब से हॉस्पिटल में शरीक ज़ेर इलाज मुआलजे के लिए दरकार अखराजात के तौर पर 70,000 रुपये रवाना करने की ख्वाहिश पर इस मुस्तहिक ने 70,000 रुपये रवाना कर धोखाधड़ी का शिकार होने का इजहार किया। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी के इश्तिराक से शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़दा वुमेन हेल्प डेस्क के 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले कामारेड्डी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद व कामारेड्डी के इश्तिराक से शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक़दा वुमेन हेल्प डेस्क 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर ज़िले कामारेड्डी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बी श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए वुमेन हेल्प डेस्क से मुताल्लिक़ा किताब की रस्म इजराई अमल में लाएगी। बातज़ा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खिताब करते हुए कहा कि ख़वातीन अपने सलाहियत व काबिलियत की बुनियाद पर तमाम शोबों में तरक्की करते हुए अपना एक ख़ास मुकाम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस वी अरविंद बाबू, एडिशनल SP WSW हैदराबाद जी राजा रत्नम, CTT ACP श्रावण कुमार, कामारेड्डी स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर S वीरయ్య व दीगर ने शिरकत ఎత్ర నాణ్యంతో పూజితే రమంతే తత్ర దేవత. అది మన దేశం. ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు నాట్యం చేస్తారంటే అక్కడ మంచి జరుగుతుంది. మంచి జరగడం అంటే సకాలంలో వర్షాలు ఉంటాయి, తర్వాత పంటలు బాగా ఉంటాయి, తర్వాత మనుషులలో చెడ్డ భావాలు రావు, చాలా మంచి గుణాలతో ఉంటారు. తర్వాత మన కల్చర్లో ఏముందంటే స్త్రీలకు అత్యంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తాం. మీరు మనం నేలని నేల తల్లి అంటాం, చెట్టుని వనదేవతం అట్లా అంటాం. మరి ఆడవాళ్ళల్లో తల్లి చెల్లి. एड़पली आंगनवाड़ी मुलाजमीन की लापरवाही के सबब एक तालिबा हादसे का शिकार होने पर मुकामी अवाम ने किया बरहमी का इजहार। एड़पली मंडल के 1 वार्ड में वाक़ आंगनवाड़ी कोड नंबर 88 सेंटर में असातिज़ा साहिबिन की जानिब से मिड डे मील के लिए कायम करदा बावर्ची खाने को गैर महफूज रखने पर दोपहर के औकात में एक तालिबा पर गैस के चूल्हे पर रखा हुआ गर्म कुकर गिरने के सबब शदीद ज़ख्मी होने वाली तालिबा को फौरी तौर पर सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जिस पर मुकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया। అలా అవి పొయ్యి సరిగా లేక ఇటుక బిల్లలు పెట్టి అండ్లా వన్ సైడు కుక్కరు ఇదైపోయి జారిపోయి కింద పడుడు కారణం 100 రూపాయల వస్తువు కోసం చూసుకుని పిల్లది అపాతం ఉన్నది. వానకు ఇట్లా ఇన్ని రోజులు సంది ఆమెకు చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాము, ఆమె పట్టించుకోకుండా ఇది నడిపిస్తున్నది. सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आशा वर्कर्स व ANM की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने काबिल सताइश करार दिया। बांसवाड़ा शहर के रेड्डी संगम फंक्शन हॉल में जामा बुनियादी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से मुनक़दा तरबियती प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए कहा कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आशा वर्कर्स ANM की जानिब से फ़राहम करदा खदमात को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी मराकिज़ में हामिला ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा की फ़राहमी अमल में लाने के बाइस हॉस्पिटल नॉर्मल डिलीवरी में इजाफा होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DMHO लक्ष्मण सिंह, रैतु बंधु ज़िले सदर अंजू रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जनगम गंगाधर, बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। ज़ात पात, मजहबी तफरीक व सियासी, समाजी, माशी मसावात का क़याम ही भारत के आइन का मकसद। कॉन्स्टिट्यूशन डे का ज़िले में जोश व खरोश के साथ एहतमाम। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को मुख्तलिफ सियासी, समाजी, मजहबी क़ायदीन ने पेश की ख़िराज। सेहतमंद माशरा ही तरक्की का ज़ामिन और सेहतमंद समाज की तामीर में ANM व आशा वर्कर्स का अहम रोल। बांसवाड़ा में हिफ़्ज़ान सेहत के उन्वान पर मुनक़दा तक़रीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। वोटर ID कार्ड के लिए 2 रोज़ा स्पेशल ड्राइव का आज शहर में इनेकाद। हर पोलिंग स्टेशन पर अवाम का हुजूम। सदर मजलिस शकील फाजिल ने पोलिंग मराकज़ का किया दौरा।
रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की कारकर्दगी से मुतासर होकर एरकटला मंडल के बीजेपी कायदे ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में हासिल की शमूलियत। रियासत में नॉर्मल डिलीवरी के तनासब में इजाफा व बच्चा व माँ की हिफाजत के लिए टीआरएस के मुख्तलिफ खिदमात। एक ही वक्त में रियासत के 44 हॉस्पिटल में स्कैनिंग मशीन का रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया इफ्तिताह। एरपली मंडल में आंगनवाड़ी कारकुन की लापरवाही के सबब एक तालिबा पर गिरा गर्म पानी का बर्तन, तालिबा हुई शदीद जख्मी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।